مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ اور لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں یعنی مفتیان کرام کے پاس، وہ ان کے جوابات دیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بھائی نے پوچھا کہ میں سعودیہ میں رہتا ہوں اور فطرہ جو ہے میں وہاں سعودی کرنسی کے اعتبار سے دیتا ہوں تو اس طرح ہو جاتا ہے؟ تو میں عرض کیا کہ اگر جنس کے اعتبار سے فطرہ دے رہے ہوں، گندم کے یا آٹے کے یا جو کے یا کشمش یا کھجور وغیرہ، تو جنس میں تو جس جگہ آپ فطرہ دے رہے ہیں اس جگہ کا اعتبار ہوگا جہاں سے بھی آپ دے دیں۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ فطرہ دے رہے ہیں رقم کے اعتبار سے، تو رقم کے اعتبار سے فطرہ دینے میں اعتبار ہوتا ہے جہاں پر بندہ موجود ہو اس جگہ کا اعتبار ہوگا۔ اگر آپ سعودیہ میں ہیں تو سعودیہ کا اعتبار ہے، آپ وہاں کے اعتبار سے فطرہ دیں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ اگر آپ اپنی زوجہ کی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے فطرہ دے رہے ہیں اور زوجہ اور بچے جو ہے وہ موجود ہیں پاکستان میں، تو پھر ان کا قیمت کا اعتبار پاکستان کا ہوگا، اور تھوڑا زیادہ ہی دے دیں تو اچھی بات ہے تاکہ دونوں جگہوں کے اعتبار سے ادا ہو جائے۔ صحیح۔ پھر ایک بہن نے پوچھا کہ فوت شدہ بیٹی کو کیا میں روزے دے سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر روزے دینے سے یہ مراد ہے کہ میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں تو ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ فرض روزے جو ہے وہ صرف اپنی ہی طرف سے رکھے جا سکتے ہیں، اس میں نیابت نہیں ہوتی۔ ہاں ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، فرض کا بھی کر سکتے ہیں، نفل کا بھی کر سکتے ہیں، ایصال ثواب آپ کر سکتی ہیں، ایصال ثواب کر دیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور فدیہ یہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ تو اگر فدیہ روزے کا دینا چاہیں فدیہ دے سکتے ہیں فوت شدہ کی طرف سے، وہ بھی لازم نہیں ہوتا اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تو، لیکن آپ دے دیں فدیہ تو اچھی بات ہے۔ باقی ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں۔ باقی ایک آیت کی بھی تصحیح کر دوں، آیت روانی میں میرے منہ سے ایک لفظ رہ گیا، وہ آیت کریمہ کی جو تلاوت کی نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، لفظ اطیعوا جو ہے وہ بے دہانی میں روانی میں رہ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی رعایت ہر جگہ ملوز رکھنے کی توفیق۔ آمین آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بہن نے بھائی نے کہا کہ سحری کرتے ہوئے لقمہ منہ میں ہے اور اذان شروع ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ لقمہ منہ میں اتار لیں یا نہیں؟ بالکل نہ اتاریں، بالکل نہ اتاریں۔ اذان سے پہلے احتیاط کیوں نہیں کر رہے آپ؟ جبکہ بار بار کہنے والے یہ بتاتے بھی ہیں اور محلے میں مساجد بھی بتاتی ہیں، تو بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب انہوں نے منہ میں سگریٹ لگائی ہوئی ہے تو اب کوئی بات نہیں ہے ان سب چیزوں سے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے، اس میں ادب کا خیال رکھیے اور جو طریقے علماء کرام بتلاتے ہیں انہیں غور سے سمجھیں، سنیں اور عمل کریں۔ مسائل صرف اس لیے نہیں بیان کیے جاتے، فقہی مسائل ہیں، بڑے نازک ہیں، ذرا سا ادھر سے ادھر ہوا اور معاملہ خراب ہو گیا۔ اس لیے روزے کو روزے کی طرح رکھیے، نماز کو نماز کی طرح، اور جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں جن سے منع کیا گیا، جن کی اجازت دی گئی، ان کو شرعی اعتبار کے ساتھ قائم کیجیے زندگی میں، تب عبادات کا مزہ بھی آئے گا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی قبولیت بھی ہوگی۔ اچھا روزہ رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے؟ جی جناب، ایک بات عرض کرتا چلوں، بعض لوگ یہ صحیح بات ہے دوسروں کو تانے بھی دیتے ہیں، بھائی تو نے روزہ رکھ لیا فاقہ ہو گیا کیونکہ نماز نہیں پڑھی، لیکن ایک بات ہے کہ روزہ اور نماز حسین امتزاج ہے۔ جہاں غلطی ہو گئی اللہ سے معافی طلب کریں، اور جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو کوشش کیجئے کہ ادا کیجئے۔ اور روزے کے قبولیت، چونکہ روزہ ایک الگ عبادت ہے تو وہ قبول اپنی جگہ پر ہے، فرض ہے، لیکن نماز ساتھ میں ضروری ہے، کیونکہ اس کو ترک کر رہے ہیں تو جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن 4 نمازیں پڑھتے ہیں، 5ویں نماز نہیں پڑھتے اور تراویح بھی نہیں پڑھتے، تو ابھی کہا گیا کہ روزہ رکھنا ایک الگ عبادت ہے، جی جی، اور اسی طریقے سے نمازیں پڑھنا ایک الگ عبادت ہے، اور تراویح پڑھنا اس یعنی وہ بھی عبادت ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی تم تراویح نہیں پڑھتے تم روزہ بھی نہ رکھو، تم نماز نہیں پڑھتے تم روزہ بھی نہ رکھو، تو ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ بہرحال وہ صحیح طریقے سے روزہ رکھے اور کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ مولا مجھے تراویح کی توفیق بھی عطا فرما اور فرائض واجبات کی توفیق بھی عطا فرما، تو یہ بڑا حسین امتزاج ہو جائے گا۔ بہرحال اگر اس سے روزہ رکھا ہے نماز نہیں پڑھی گناہگار ہوگا،
तरावी नहीं पढ़ी, सुन्नत मुअक्कदा है, छोड़ता रहा गुनाहगार होगा, एक से ज़ायद मरतबा अगर छोड़ता रहा गुनाहगार होगा, लेकिन रोज़ा उसका हो जाएगा। लेकिन उसे अल्लाह ताला की बारगाह में नमाज की भी और तरावी की भी तौफीक मांगनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि भाई ने कहा कि जिस्म पर दाने हैं और उसमें से मवाद निकलता है, ज़ाहिर है कि उस वहाँ पर पट्टी वगैरह भी, यानी जिस्म के किसी हिस्से में दाने तो मवाद निकलता है, वहाँ पट्टी वगैरह भी नहीं, कोई बैंडेज वगैरह नहीं करवा सकते, तो क्या हुक्म हो? तो बात ये कि बैंडेज ना करवाएं तो कोई इस तरह यानी पट्टी जो है, जो सिंगल पट्टी होती है वो लगाने की कोशिश कर लें। अगर वो भी नहीं लगती तो उससे मवाद निकलता ही है तो उसके पे पाक करना ज़रूरी होगा आपको। हाँ, इतना ज़रूर है कि इतना निकल रहा है मवाद कि आप एक वक्त की नमाज उसमें नहीं पढ़ सकते, आपको वक्त नहीं मिल रहा, पूरा वक्त वो घेरे हुए है, तो फिर उस सूरत में आप शरी माजूर हो जाएंगे। तो उसका हुक्म ये होगा कि जैसे जोहर के टाइम में आपने वज़ू किया, उसके बाद नमाज पढ़ी, अगरचे वो मवाद निकल रहा है लेकिन उसमें वज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप नमाज पढ़ते रहें, कुरान शरीफ की तिलावत भी करते रहें। कोई और उज़्र ना पाया जाए, मसलन रीख खारिज होना या कुछ और होना, कोई और चीज़ होगी तो वज़ू आपका टूट जाएगा, लेकिन फ़कत वही आरिज़ है तो फिर वज़ू आपका चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ज़ोहर की नमाज का वक्त ख़त्म होगा, आपको नए सिरे से उसे पाक भी करना होगा और वज़ू भी करना होगा। यानी एक वज़ू से एक नमाज का वक्त, एक नमाज का वक्त। हाँ, और उस वक्त में उसके अलावा कोई और उज़्र पाया गया तो वज़ू टूट जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ वही उज़्र है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करते रहें दूसरी नमाज के लिए। जी हाँ, आप नहीं, आप उसमें वो नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त खत्म होगा अब नए सिरे से पाक करें और वज़ू करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो भाई ने कहा कि मैं यूके में होता हूँ, सहरी के 2 घंटे बाद मेरा सफ़र है तो मुझे रोज़ा रखना होगा या नहीं? चूँकि 2 घंटे बाद सफ़र है और आपने रोज़े का वक्त जो पाना है वो अपने मुल्क में पाना है, अपने शहर में इकामत की हालत में, तो आप रोज़ा रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन आप इसको तोड़े यानी छोड़ेंगे तो वबाल होगा उसका, आपको ये रोज़ा रखना होगा। लेकिन अगर सहरी से पहले ही आपकी फ़्लाइट है तो फिर आप निकल सकते हैं, रोज़ा छोड़ सकते हैं। मुझे मेरा एक सवाल है, मिसाल के तौर पे आप जी, इसी में दूसरा वो कह रहे हैं कि दूसरा रोज़ा भी आ रहा है, वो दुबई में आएगा, उसका भी फरमा दे। वक्त का दूसरा रोज़ा, एक रोज़ा तो गुजर के क्योंकि लंबी फ्लाइट होती है, दूसरा रोज़ा चूंकि आपका सफ़र की हालत में आएगा उसका आप छोड़ दें। आपको ऑप्शन है, रखें या ना रखें, नहीं रखेंगे गुनाहगार नहीं होंगे, बाद में कज़ा करनी होगी। वो चूंकि सफ़र में आ रहा है। जी, आपका सवाल क्या? जी, मेरा सवाल ये था मुझसे कि मिसाल के तौर पे लंबी फ्लाइट वाली बात हुई ना, हम यहाँ से निकलते हैं सहरी करके और दरमियान में हमें चंद ही घंटों के बाद किसी स्टेट से हम गुजर रहे हैं, 5-7 घंटों के बाद, तो हमें गुरूब आफ्ताब नज़र आ रहा है, तो हम उसी का भरोसा करते नहीं, उसका भरोसा नहीं करेंगे। जहां पर आप मंजिल पर पहुंचेंगे वहां का भरोसा, वहां का भरोसा। या आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, चेंज हो, या तो कनेक्टिंग फ्लाइट है तो जहां पर आप ठहरे हैं 2-3 घंटे के लिए, अगर वहां पर भी गुरूब आफ्ताब हो रहा है तो आप कर लें। और इसी तरीके से जहां मंजिल मकसूद है वहां पर पहुंचे तो वहां का एतबार होगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक सवाल ये हुआ, बहन ने कहा मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान से कराया आता है, बैंक में है, कुछ हम खर्च भी करते हैं तो ज़कात होगी या नहीं? इन्होंने कहा कि 60-70 लाख रुपए उसमें है तो ज़कात तो उस पर डेफिनेटली होगी, आपको अदा करनी होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और एक सवाल ये हुआ कि मुंह में, अच्छा ये तो, अच्छा मुंह में जो लुकमा और अजान हो रही है तो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बिल्कुल सही बताया और इसमें नसीहतें भी फरमाई। अल्लाह ताला नसीहतों पर सबको अमल पैदा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अजान आमतौर पर जो होती है ना सारी की, वो वक्त गुजर जाता है, यानी रोज़े का वक्त ख़त्म हो जाता है, यानी सारी का वक्त ख़त्म हो जाता है और बाकायदा सुबह सादिक शुरू हो जाती है। तो अब सुबह सादिक होने के साथ ही जैसे ही टाइम हुआ अजान हो गई और उस अजान में लुकमा आपके मुंह में था तो आपने फेंक दिया, आपने उससे अंदर नहीं लिया, तब तो रोज़ा हो गया। लेकिन अगर वक्त होने के बाद अजान हुई तो और अब लुकमा मुंह में था आपने ले लिया तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा, आपको कज़ा करनी पड़ेगी। जी, ये एक बहन ने सवाल पूछा कि मेरी भाई ने सवाल पूछा कि मेरी अहलिया के पास 5 तोले सोना है, 2 तोले चांदी है, मेरा काम नहीं है, तो अब हुक्म क्या, ज़कात होगी या नहीं होगी? तो हम पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुके कि सोने के एतबार से जो है वो ज़कात का निसाब 7.5 तोले है, चांदी के एतबार से ज़कात का निसाब 52.5 तोले चांदी है। लेकिन जब दोनों जिनसे मौजूद हो, यानी सोना और चांदी दोनों हो, मखलूत हो, तो इस सूरत में चांदी का एतबार होता है और चांदी के निसाब के एतबार से इन पर ज़कात बन रही है, लिहाजा इन पर ज़कात लाजिम होगी। और कुछ अगर है नहीं, पैसे नहीं है ज़कात देने के लिए, तो भले इसको बेच कर ज़कात दें या उधार देकर ज़कात दें, ज़कात बहरहाल देनी पड़ेगी। फिर एक भाई ने सवाल पूछा कि
रोज़ा ना रखने वाले पर ईद जायज़ होगी या नहीं होगी? अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि एक वो आदमी है कि जो रमज़ान का रोज़ा किसी उज़्र की वजह से नहीं रख रहा, जो किसी उज़्र की वजह से रमज़ान के रोज़ा नहीं रख रहे, उनके लिए तो मसला नहीं है, बिल्कुल ईद मनाए, धड़ल्ले से मनाए, खुशी से मनाए, दायरा शरीयत के अंदर रह कर। लेकिन जो आदमी बिला उज़्र शरई रोज़े नहीं रखते, तो ईद तो खैर उनके लिए भी जायज़ है। ईद उल फितर तो सारे ही मुसलमानों के लिए त्यौहार है, मुबारकबाद दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनका ज़्यादा खुशियाँ मनाना बनता नहीं है, क्योंकि ये असल में तो खुशी है उसके लिए कि जिसने अल्लाह की इबादत की हो, जिसने रोज़े रखे हों, जिसने तरावी पढ़ी हो। बाकी जो खोजेदार हों, जिन्होंने रोज़े रखे ही ना, उनका खुश होना अच्छे माना दारा खुशी का मकाम नहीं, बल्कि रोने का मकाम है कि तुम्हें रमज़ान नसीब हुआ लेकिन हमने इबादत नहीं की, उसके अंदर कोई मगफरत वाले काम नहीं किए। फिर एक भाई ने सवाल पूछा कि क्या इतिकाफ के दौरान नहा सकते हैं? लेकिन जहाँ तक फ़र्ज़ नहाने की बात है, फ़र्ज़ नहाने की तो बिल्कुल इजाज़त है, वो तो मस्जिद के बाहर जाकर भी अगर नहाना पड़े तो नहाएंगे, फ़र्ज़ नहाना, वाजिब नहाना। बाकी रह गया वैसे ठंडक की वजह से नहाना, गुस्ल तबरीद जिसे कहा जाता है, या नफली गुस्ल करना, इसके लिए बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते? तो अगर मस्जिद की हुदूद से बाहर गुस्ल खाना हो तो बाहर नहीं जा सकते, मस्जिद की हुदूद के अंदर हो, यानी जिसे फ़नाए मस्जिद कहा जाता है, तो उसमें भी इख्तिलाफ़ है। लेकिन हमारे यहाँ मुफ्ता भी कौलिया हम इस पर फतवा देते हैं कि फ़नाए मस्जिद में नफली नहाना या नफली गुस्ल या गुस्ल तबरीद से इतिकाफ नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई बहन है तो बहन का मस्जिद बैत से अगर वो बाहर नफली गुस्ल के लिए जाएगी या निकलेगी गुस्ल तबरीद के लिए, उसका इतिकाफ बहरहाल टूट जाएगा, क्योंकि औरतों के मस्जिद बैत के अंदर फिनाए मस्जिद का तसव्वुर नहीं। और कमरे में ही अगर अटैच, कमरे में अटैच हो तो भी नहीं जा सकती। फिना का तसव्वुर नहीं है औरत के यहाँ। एक भाई ने पूछा कि फितरा देना हर सूरत में फर्ज है, अगर बंदा मकरूज हो तो उसके लिए क्या हुक्म है? फितरा देना फर्ज है साहिब निसाब के लिए, मुसलमान हो, आज़ाद हो, साहिब निसाब हो, आकिल होना, बालिग होना मुफ्ती कौल के मुताबिक शर्त नहीं, लेकिन साहिब निसाब है तो देंगे। और अगर मकरूज है तो कर्ज मिनहा करने के बाद कुर्बानी का निसाब बन रहा है तो फितरा देंगे, निसाब बन रहा हो ज़कात का तो देंगे फितरा, अदरवाइज फितरा नहीं देंगे। बिल्कुल। एक सवाल ये हुआ कि बच्चे को माँ फीड कराती है तो क्या वो रोज़ा न रखे? देखें, कमज़ोरी अगर उस पर गालिब होती है तो फिर रोज़ा न रखने की उसको इजाज़त है, ऑप्शन है, बाद में कज़ा करनी होगी। कमज़ोरी गालिब नहीं आती तो रख ले, अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई कहते हैं कि फितराना कितना है इस वक्त? जो है वो कम से कम यानी गंदम के एतबार से 320 रुपए है फितराना। ठीक है। और इसके बाद बहन ने कहा कि कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक ना दे, लोगों से कह रहा है तलाक दे दी है, और बीवी से कहता है मैंने तलाक नहीं दी है। खुदा ना खास्ता कोई शख्स अगर ये कहे किसी से कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है तो इससे भी हो जाती है। तो लिहाजा यहाँ पर मैं फतवा नहीं दे रहा, ये अपने दारुल इफ्ता में जाए इलाके के, क्योंकि हो सकता है कि शोर ने कुछ कहा हो, ये कुछ समझी हो, लोगों ने कुछ कहा हो, तो वहाँ दारुल इफ्ता में जाए, दोनों बैठे सामने और सवाल पूछे तो उसका जवाब इनको इंशाल्लाह इनको मिल जाएगा। जी ठीक है। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुसाब आपका, डॉक्टर साहब आपका, तीनों हज़रात तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब ने तो मुसाब आज कमाल ही कर दिया माशाल्लाह। नहीं, आज हमारा काम नहीं था हज़रत। हाँ, क्या बात, आज माशाल्लाह सब हमारा काम नहीं था, आज तो बड़े माशाल्लाह। तो गुजारिश है कि आप लोग हमारे साथ रहिए। अगला सेगमेंट है मालूमात ही मालूमात, यानी कोई सेगमेंट जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे एक और टैलेंटेड होस्ट जनाब डॉक्टर सैयद इमरान वदूद।